Okay. This is section B, right? So today I am just going with the construction of Turing machine. So in the previous lectures, we have started actually the construction of Turing machine. So we have designed various Turing machines like AN, BN, and W end with A, W end with B, and last symbol just erasing of the last symbol likewise, right? So on the same way, we can also construct a Turing machine for such type of problem that cannot be solved, that cannot be designed for the PDA or by the PDA, right? So suppose the problem is you have to design a language, you have to design a Turing machine for the language L is equals to AN, BN, CN, where N is greater than 0. So the meaning is the purpose here is you have to compare A, B, and C, means equal number of A and equal number of B and equal number of C. But the condition is you have to start it with A, then must be started with B, and finally the C will be encounter. This is the simple way. So how can we ensure the main problem behind this particular problem is how can we ensure that the iteration of A is iteration of A are equal to iteration of B and iteration of C. So now the logic is we can perform the comparison between A and B with the help of the stack also in case of PDA. But how can we compare the C with A and B? So with the help of the Turing machine, we can try to resolve this type of problem because Turing machine has the capability of read as well as write on the input take. So just see here, the logic is suppose your string is A, B, B, and C, C, right? And after that, you have the blank sign. This is the end marker. You can say this is the, you are in the end of the string. Clear? So the logic is just I am going to try that this suppose A is converted into X and move towards the right direction. Then A is there, then no need to mark this A by any sign. This B is there, means we have to compare A with B and with C. So in this case, simply this B is converted into Y or marked into Y and move towards the right direction. Clear? So one A is converted into X and one V is converted into Y. And similarly, if any number of B is there, so no need to change the input alphabet in this case. Just you have to move towards the right direction. And as soon as you receive this C from the tape, just convert it into Z and move towards the left here. Just this is the important point. After converting this C into Z, you should move towards the left direction. And then you will find any number of V or any number of A. So in this or any number of Y also, right? At the time of reversing from right to left. So in this situation, you don't require to do anything. Just read B, then write B, move towards left. If Y is there, just read Y, write Y, move towards left. If A is there, just read A, write A, move towards the left until you will find this X. Are you getting my point? As soon as you find this X, just write X and move towards the right direction. And the state will be again Q0. That will be the initial state. So the same, or you can say the same transition will be repeated until you can reach to the final state. Just see how. So again, this is A. So Q0A already you defined, that is converted into X. Y is there. So just write Y, move towards the right. No need to change anything. If B is there, just converted it into Y. Now Z is there. So in this case, no need to move left. Just write Z after reading Z and move towards right. As soon as you receive this C, just convert it into Z and move towards the left. Clear? So in this situation, you will find Z on the left side, Y in the left side,
until you get the x. So in this situation, just you move towards the right. So in this case, if you find this this by on the initial state, that is q0, because on x you have to move towards the right. So as directly you can find by here, that means all b are converted into by, right? So in this case, just see here, there is any b? No, there is no any b. All b's are converted into by. And after that, you should also check about the z. There is there is any c's there? If there is no c's there, all c's are converted into z. That means that means c are equal to B and A, because at a time B read this A and cross, B read this by, then mark the cross, and C read this C, mark the cross, right? So at a time B cross one A, one V, and one C. So if there is no C is there, that means C is also equal to B and A. And after that, if you find blank sign after this Z, that means you are in final state. So this is a simple logic to construct a Turing machine for A and B and C. So just see the machine, and we will discuss the same thing in detail also. So see here, in first A is converted into X. So A read X right and direction is right. So now just single A, you can just see here, this is the execution I already wrote here. So this A is converted to X and movement is right. Clear? So first A is converted into X. Now if any other A means any number of A is there, means A 100 ho, 100 ho, 5 ho, kuch bhi ho. So just read A, write A, move towards the right. तो A को read करके आप A रखेंगे, आप आगे move करते हुए चले जाएंगे. No problem at all. So as soon as you receive this B, then B is converted into by. So first B is obviously converted into by and move towards the right. So you just see here, I am just changing the state after reading this Q1 B towards the Q2. So that means only one B is converted into by, right? If we are marking any symbol on the loop, that means all the B are converted into by, right? So that's why our purpose is just to convert a single B into by. That means we can't put here into loop. Are you getting this point? Loop पर क्यों नहीं लिखा? Loop पर अगर लिख लेता मैं तो सारे B by में convert हो जाते. But now our point is, our problem is we have to compare A with B and C. So one A is converted into X, one B is converted into by. If any B is there, then just write B and move towards the right. Right? After that, as you find C here, just C is converted into Z and direction is left. Just see here. Here the direction is right. Here is the direction is right. Here the direction is left, because on this C, this is converted into Z and we are moving towards the left, right? Means one A is converted, one B is converted, and finally one C is also converted. Clear? अब इसके बाद क्या मिलेगा? बी मिल सकता है आपको, बाई जो आपने चेंज किए थे वो मिल सकते हैं, ए मिल सकता है, तो कुछ भी मिले हमें वो ही रखना है, डायरेक्शन लेफ्ट में ही चलना है. जस्ट सी हियर, जेड रीड, जेड राइट, डायरेक्शन लेफ्ट. बी मिला तो बी को ही राइट करो, डायरेक्शन लेफ्ट. बाई मिला तो बाई को राइट करो, डायरेक्शन लेफ्ट. ए मिला तो ए को ही राइट करो, डायरेक्शन लेफ्ट. ठीक. और कब तक? जब तक कि आपको एक्स नहीं मिलता. एक्स इज व्हाट? एक्स इज योर लेफ्ट मोस्ट सिंबल दैट यू आर कन्वर्टेड इनटू converted from A. So just read X, write X, and movement of head is right. So you reach to the state Q0. The same process will be executed again and again, right? So that means in the second step, you will also find this A is converted to X. This Y is there, so no problem. This Y को Y रखना है, right direction में चलना है. B मिला तो B को हमने Y करना है, right? और डायरेक्शन राइट. आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा? जेड. तो जेड पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें किस पर करने की जरूरत है? सी पर. तो जैसे ही हमें सी मिला, इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू जेड एंड डायरेक्शन इज लेफ्ट. जब आप वापस आएंगे तो आपको जेड भी मिलेगा, बाई भी मिलेगा, एक्स भी मिलेगा, सबको एज इट इज रखना है. कब तक? जब तक कि एक्स नहीं मिलता. जैसे ही एक्स मिला, जस्ट आप यहाँ से राइट टर्न करेंगे.
तो राइट टर्न करा तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बाई। दैट मीन्स एक्स, ए और बी सारे कंप्लीट हो चुके, किसमें, एक्स और बाई में। मीन्स नो ए नो बी इज रिमेनिंग ऑन द टेप, राइट। सो बाई मिला तो बाई का हमें बाई रखना है, डायरेक्शन हमें राइट करनी है, ठीक है। अब हो सकता है और भी बाई हो, मीन्स ए से बी एक से ज्यादा हुए होंगे तो और भी बाई हो सकते हैं। सो जस्ट write b, if by more by are there, then just read by, write by, direction is right. If z is there, just read z, write z, and direction is right. Means there is no c here. If there is no c here, that means all c are converted into z. And after that you will find blank sign. That means all you are at the last of the input string. So that means if you are reading blank, just write blank, and direction is head, right or left, कुछ भी लिख सकते हो। n लिखा, n means neutral. So means you here you can mark the direction left or mark the direction right, whatever you want, right? Finally you are reached on the halting state or the final state. So this is the example that cannot be solved by the push down automata or by the finite automata, but this problem can be solved by the Turing machine. So the comparison of A, B, and C can be possible with the help of the Turing machine. So you can note down this question and you can try, you can execute. If you have any problem, then please let me know. अभी किसी को दिक्कत आ रही हो किसी पॉइंट में, प्लीज बता सकते हैं आप लोग। If any one of you have any problem in this diagram, then please let me know. नंदिनी, अभिषेक, किसी को भी प्रॉब्लम हो, सौम्या, रोशनी, उन्नति, कार्तिक, कोई कहीं भी, विशाल, कहीं भी आपको लग रहा है कि इस पॉइंट में सर समझ में कम आ रहा है, थैंक यू नंदिनी फॉर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। एनी अदर? आशुतोष, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सभी के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है। किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताइए। समझ आ गया? रोशनी, एक्स में कैसे चेंज किया, एक्स में कैसे चेंज किया, क्या पूछ रही है बेटा? आपका समझ नहीं आ रहा मुझे रोशनी, आपने कुछ पूछा है, मैं समझ नहीं पा रहा। आपने पूछा सर एक्स में कैसे चेंज किया, तो एक्स का मतलब हमने इसको मार्क कर लिया। तो एक सिंबल हमारे ट्यूरिंग मशीन का एग्जीक्यूशन जब हम लिखते हैं, ट्रांजिशन एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले रीड क्या किया, उसके बाद क्या लिखना चाहते हो उस सिंबल को रीड करके, और उसके बाद डायरेक्शन क्या लिखना चाहते हो आप। ये तीन तरीके से ही तो हम कभी भी ट्रांजिशन को डिफाइन करते हैं ट्यूरिंग मशीन में। ये चीज पता है रोशनी? तो रीड क्या किया, ए, और ए को रीड करके मैं चाहता हूं कि ए को रीड करके उस जगह पर मैं अपनी मार्किंग कर दूं एक्स, उसके बाद डायरेक्शन हो जाए राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी टेप पर रीड करेगा हेड ए, द ए इज कन्वर्टेड इनटू एक्स एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट। ये मैंने पूरा एग्जीक्यूशन करके भी दिखाया था आपको, है ना। तो वो चीज है ये। आगे बेटा रोशनी, थैंक यू। मेघा, वेरी गुड। तो ये मतलब है बेटा। तो पहला मैंने क्या किया, एक ए को क्रॉस कर लिया, भाई मुझे तीनों को कंपैरिजन करना है इन तीनों का, तो मैंने क्या किया, इसको पहले क्रॉस कर लो, इसका मैंने एक इसका क्रॉस कर लिया, एक इसका कर लिया, एक बार में। फिर मैंने दोबारा राउंड लिया, है ना। बिकॉज इन केस ऑफ ट्यूरिंग मशीन यू कैन मूव लेफ्ट साइड ऑल्सो, राइट। बिफोर द ट्यूरिंग मशीन यू कांट मूव टू द लेफ्ट साइड। तो एक बार मैंने क्या किया, एक बार एग्जीक्यूशन किया, और एक ए को खत्म किया, एक बी को खत्म किया, एक सी को खत्म किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को कंपैरिजन हो गया। फिर दोबारा आया, द सेम प्रोसेस दोबारा करो, ठीक है ना। और बाप फिर अब दिक्कत कहाँ आएगी, फाइनल कैसे डिसाइड करोगे आप? तो फाइनल तब डिसाइड होगा जब आपका एक भी ए नहीं बचा, एक भी बी नहीं बचा, और एक भी बाई सी नहीं बचा, और सब क्या क्या बचा आपको, एक्स हुआ, डायरेक्ट क्या मिल रहा है, बाई, या और आपको क्या मिल रहा है, जेड। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो बी एंड नो सी इज देयर। दैट मीन्स you have the same number of A, B and C and you are in final state. अब क्लियर हुआ बेटा रोशनी? क्लियर हो गया? और मानसी, विनीत, तनेश, बताओ बेटा प्लीज, किसी को भी प्रॉब्लम हो? वेरी गुड। तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अब आप अपने आप से कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई मशीन डिजाइन आपको करनी है, आप अपने आप से बना दोगे इजी मशीन? हाँ, सभी लोग कर सकते हो अपने आप से। चलिए, so just very good, thank you. Now you have to design a Turing machine. Just note down a question. आपको अपने आप से करना है, जहां डाउट होगा मैं बताऊंगा।
Just you have to design a Turing machine for L is equals to W WR, W reverse. WR का मतलब क्या है? W reverse, right? Where W belongs to A comma B. Just note down in your notebook A comma B whole asterisk and try to solve this particular question by own so that you can understand the logic. Question मैं आपको समझाता हूं. The question is WWR where W belongs to AB asterisk. That means W can be any combination of A and B. Means अभी तक क्या था? A and B and that means you have to start it with A only, right? That, but in this situation you can start with A or can be start with B. So you have to note, you have to write all the transitions to keep in mind these things, right? The same thing can be, the same question can be asked that design a Turing machine for the palindrome. This is also a palindrome, right? W reverse. So if I talk about this, so in this situation, you can find here, suppose this one, in this situation, you can find here that, just see here, WWR. That means if W is suppose A, B, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. सपोज मैंने W क्या ले लिया? सपोज W is AB. So the reverse of W will be BA. Clear? If you have any doubt, then please let me know. Just I am explaining each and every step in detail. So in this situation, just you can see, if W is suppose BAB, then W reverse will be BA. If W is suppose BA, then in this situation, the W reverse will be AB. Am I correct or not? Am I correct? If suppose W is ABA, that means W reverse will be ABA. Clear? So in this, on the similar as the programming, we can find some logic behind this WWR. So if that means if you are starting with A, that means end must be A. If you are going to start with B, that means end must be B. आप कभी भी देखिए, इससे स्टार्ट करोगे तो आपको ये मिला, B से स्टार्ट हुआ तो लास्ट से जब आप देखोगे तो B मिलेगा. तो the simple logic is what? Just you have to write two different transitions. If you are starting with A, अब आप क्या करो? ब्लैंक तक कवर आगे बढ़ते चले जाओ. मींस ए को क्या करो? ब्लैंक कर दो. इस ए को भी क्या कर दो? रीड करो और ब्लैंक कर दो, क्योंकि हम ए को रीड करके राइट तो कुछ भी कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद कुछ भी मिले, ए या बी, आप आगे चलते जाइए. कब तक? जब तक कि आपको ब्लैंक नहीं मिलता. जैसे ही आपको ब्लैंक मिला और ब्लैंक के बाद आप जैसे ही लेफ्ट आएंगे, इसका मतलब क्या होगा? यू आर एट द लास्ट अल्फाबेट, राइट? सो कन्वर्ट इट इनटू ब्लैंक. क्लियर? अब देखिए दोबारा, ये कब तक करोगे? ए और बी कुछ भी मिले, लेफ्ट आते जाओ. कब तक? जब तक कि आपको ब्लैंक नहीं मिलता. जैसे ही ब्लैंक मिले, Q0 स्टेट कर दो, डायरेक्शन इज राइट. तो जैसे ही बी से आपने स्टार्ट किया, ब्लैंक किया, आप ए और बी कुछ भी मिले, आगे चलते चले जाओ. जैसे ही ब्लैंक मिला राइट में, यहां से लेफ्ट ले लो. लेफ्ट लेने के बाद जैसे ही ब्लैंक बी मिला, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करो. क्लियर? और क्या करोगे इसके बाद? कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे? इसको लेफ्ट लोगे या राइट ले लो, कहीं पे भी ले लो. अब आप देखो यहाँ पर भी आपको ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद भी तुरंत आपको क्या मिल रहा है? ब्लैंक. दैट मीन्स यू आर इन द फाइनल स्टेट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप इसमें भी लॉजिक लगा सकते हो. देखो यहाँ पे ब्लैंक किया पहले, फिर मैंने यहाँ ब्लैंक कर दिया. ये तो कह रहा हूं मैं आपसे, बी से शुरू करो तो बी से एंड कर दो. तो इसको भी ब्लैंक कर लो, इसको भी ब्लैंक कर दो. फिर क्या होगा? इसको ब्लैंक करेंगे आप, और इधर से जब ब्लैंक से वापस लौटेंगे तो इस ए को भी क्या कर दोगे? ब्लैंक. और डायरेक्शन कैसी होगी इस समय? लेफ्ट. और लेफ्ट आने के बाद आप देखोगे क्या मिलेगा आपको? ब्लैंक. और स्टेट क्या होगी? Q0. और Q0 स्टेट पे डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा? ये ब्लैंक. दैट मींस यू आर इन फाइनल स्टेट. तो लॉजिक समझ में आया? मशीन ड्रॉ करके 2 सेकंड में बता दूंगा मैं, बट you must know the logic behind this WW reverse. In this situation, you must know about the how can we compare the palindrome. Means how can we check that W is initially and W reverse is after that. तो क्लियर हो गया? समझ में आया बेटा सबको? लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि W रिवर्स है, तो हम वेरीफाई कैसे करें? इंश्योर कैसे हो गए आपके W के बाद W का रिवर्स ही है?
सो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक ये हुआ, इफ वी आर स्टार्टिंग विद ए दैट मींस लास्ट सिंबल भी हमारा ए होगा। पैलिंड्रोम में यही तो होगा। तो हम लोग क्या इसमें और इससे पहले जो हम लोगों ने जो पीडीए पढ़ा या फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा, इन दैट केस वी कांट ट्रेवर्स टू द लेफ्ट साइड, but the positivity of this Turing machine is we can write the symbol as well as we can move towards the left also, right, along with the right. So this is the important feature of this Turing machine. So that's why, so we can suppose this is the W, then W reverse will be what? This one. So in this case, you can easily say that the first symbol is equal to the last symbol. This is first, then this is, this. You can verify that. You can verify your design machine in this way. So logic is clear to all. Logic सभी लोगों को clear हुआ, ठीक है? Now, just note down the machine. You can see here. अब पहला देखिए जो मैंने आपको बताया, जस्ट आप उसी तरीके से देखिए। ये मैंने आपको सिंपल से सिंपल तरीके से बताया। अगर आप इसको नेट से देखते हो, बुक से देखते हो, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो। तो मैंने आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इन दिस केस जस्ट सी हियर, पहला ए हमने रीड किया, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, ए इज कन्वर्टेड टू ब्लैंक एंड मूवमेंट इज राइट। क्लियर? हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि ए को एक्स क्यों नहीं करा, ब्लैंक क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों का पर्पस है। वहां एक्स वाई जेड की हम एक एक को कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, पहला ब्लैंक कर दो, उसके बाद हमारा लेफ्ट मार्क फिक्स हो गया और राइट से हम इधर करते चले आए, तो हमें पूरी मशीन को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, है ना। वी कैन सेव आवर कंप्यूटेशन टाइम। तो जस्ट सी हियर, ए को हमने क्या किया, ब्लैंक किया, डायरेक्शन इज राइट। उसका कितना भी ए मिला चाहे बी मिला, हमने क्या कहा था, जस्ट लूप पे रखो, ए को ए रखो, आगे बढ़ते जाओ। कब तक? जब तक कि आपको ब्लैंक नहीं मिलता। ब्लैंक पर अगर आप आ गए, दैट मींस यू आर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब एंड पे आ गए ब्लैंक पर, तो ब्लैंक का ब्लैंक ही रखो, डायरेक्शन क्या कर दिया, लेफ्ट। अब लेफ्ट जब जैसे ही ब्लैंक के बाद आप लेफ्ट लोगे, इसका मतलब क्या होगा, यू आर एट द लास्ट सिंबल। क्लियर? ये चीज मैंने आपको ट्रेवर्सिंग बहुत अच्छे से बताई थी, इसीलिए कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप लास्ट सिंबल पर है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, शुरुआत आपने कहां से की है, ए से, तो लास्ट वाला सिंबल भी क्या होगा, ए। तो जस्ट राइट द ट्रांजिशन फॉर ए ओनली। तो ए के लिए लिखेंगे, ए को भी क्या कर दो ब्लैंक, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट। जब आप वापस लौट रहे होंगे तो हो सकता है बहुत सारे ए हो, आपको रास्ते में बी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए का ए रखना है, बी का बी रखना है, डायरेक्शन लेफ्ट। कब तक? जब तक कि आपको ब्लैंक नहीं मिलता। ब्लैंक कौन सा वाला मिलेगा, जो आपने ए को कन्वर्ट किया था। क्लियर? सो दिस बी इज देयर, राइट बी एंड मूवमेंट इज राइट। क्लियर? उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसके बाद अब ये होगा, इनिशियल स्टेट पे आ गए, फिर दोबारा से क्या होगा, फिर दूसरा ए मिला, उसको ब्लैंक करेंगे, यहां तक चलेंगे। तो अगर मैं आपसे इतनी मशीन की बात करता हूं, इसमें एक चीज क्लियर हो गई कि हर बार ए से स्टार्ट होगा, बट यू कैन से टू मी दैट ए मशीन कैन स्टार्ट विद बी ऑल्सो। ऐसा भी तो हो सकता है, बी से शुरुआत हो, बी ए, तो इसका रिवर्स क्या हुआ, ए बी। तो बी का तो आपने लिखा है नहीं, जबकि बी इसमें आ सकता है। सो नाउ we have to repeat the same transition, we have to copy the same transition for B also. Just see here, B is there, just B, इस बिल्कुल ए की जगह B कर दीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ए को आप ब्लैंक कर रहे थे, तो अगर B मिलता है तो B को ब्लैंक कर दो, ठीक है। और स्टेट को आप अपने हिसाब से चेंज कर देना, मैंने आपको समझाने की वजह से Q1 Q2 लिखा है, ठीक है। लूप पर ए और बी एज इट इज रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ब्लैंक ब्लैंक लेफ्ट, ब्लैंक ब्लैंक लेफ्ट, Q2 से आप किस पर जा रहे हैं, Q3, तो डायरेक्ट यहाँ से Q3 पर जाइए। ए को रीड करके ब्लैंक हो रहा था, यहाँ पर रीड क्या कर रहे हैं आप, बी, तो बी को रीड करके ब्लैंक करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ गई बात? शुरुआत ए से हुई तो एंड किससे होना चाहिए, ए से, और शुरुआत अगर बी से हो रही तो एंड किससे होगा, लास्ट सिंबल क्या होगा, बी। सो नाउ यू आर इन Q3 स्टेट, and finally you can find A or B, then just you can move towards the left side until you can find blank sign। और जैसे ही ब्लैंक आपको मिल गया, तो ब्लैंक के बाद ब्लैंक कौन सा मिलेगा, जो ए आपने कन्वर्ट कर रखा हुआ ये वाला ब्लैंक है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाला भी चेंज हो चुका होगा ब्लैंक में। तो अगर ब्लैंक के साथ ब्लैंक हमें मिलता है, तो ब्लैंक का ब्लैंक रखना है, और डायरेक्शन यहाँ पर लेफ्ट और राइट कुछ भी रख सकते हो। मैंने एन लिखा है न्यूट्रल, मतलब आप डायरेक्शन का यहाँ कोई सेंस नहीं है। स्टे ऑप्शन भी लिख सकते हो, लेफ्ट लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो, आप यहाँ पर आर यूज करिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट यू आर इन halting state or the final state. So how many of you have understand this particular Turing machine for WWR? मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस मशीन में? जबकि ये दिखने में बहुत टफ लग रहा है ना,
मैंने आपको इजी तरीके से, इजीएस्ट वे में आपको समझाया है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको लॉजिक जो मैंने आपको बताया, क्या इफ यू आर स्टार्टिंग विद ए देन यू शुड एंड विद ए। तो ये चीज आपको, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? रोशनी समझ आया? प्रियंका, आयुष, समझ में आ रहा है बेटा? कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कोई भी? वेरी गुड, थैंक यू नंदिनी। जय, ठीक है। Q3 का लूप बता दूं। देखो Q3 का लूप बताने का सीधा सा रीजन है, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा, है ना? देखिए मैं लेके चलता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग बता दो आप। आपने ए बी ए बताया तो ए बी ए लिया, ठीक है? तो ये क्या लिया? डब्ल्यू ले रहे हैं ना आप। अब डब्ल्यू का रिवर्स क्या हो जाएगा बताओ? ए बी ए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो जस्ट ये देखना है इसका रिवर्स क्या हुआ, सेम हो गया कि सर अलग हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आवर मशीन शुड वर्क ऑन द सेम मैनर, जस्ट इट शुड ट्रीट in the form of W and W reverse. So देखिए, just Q0 you are in state Q0, so A को रीड कर रही है आपकी मशीन, your head in this position initially, Q0 state is there, so A को रीड किया आपने। आपने क्या कहा? A को रीड करके ब्लैंक कर दीजिए। आप इसकी जगह आपने क्या कर दिया? ब्लैंक। और डायरेक्शन क्या है? राइट। अब हेड यहां से रीड ना करके, अब हेड कहाँ आ जाएगा हमारा हेड? अब देखिए, अब हेड की पोजीशन देखो, हेड कहाँ होगा? नाउ यू कैन सी हियर हेड इज ऑन राइट डायरेक्शन, का मतलब हुआ हेड यहाँ आ जाएगा। और स्टेट का नाम क्या होगा? Q1। तो हेड Q1 स्टेट में आ गया। Q1 पे क्या रीड करेगा? बी। तो आप देखो Q1 पे बी रीड करके Q1 पे ही रहना है उसको, बी का बी रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायरेक्शन क्या है? राइट। अब देखो हेड कहाँ पहुंच गया? इस ए पर है, स्टेट हमारी Q1 ही है, ठीक है ना? यहाँ तक बात। Q1 पे क्या रीड करेगा? ए का ए रखना है, डायरेक्शन इज राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ए मिला, ए का ए रखना है, डायरेक्शन इज राइट, बी का बी रखना है, डायरेक्शन इज राइट, ए का ए रखना है, डायरेक्शन इज राइट। यही घूमता रहेगा किस स्टेट पर? Q1 पर। और इसके बाद क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल लास्ट में ब्लैंक सिंबल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं, जहां नहीं आए वहीं तुरंत बताना बेटा, क्योंकि आप बाद में बोलोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ये दिस इज द W। क्लियर हो गई बात? अब ब्लैंक पे जब आप आए तो आपका हेड किस स्टेट में था? Q1 पर, ठीक है? तो Q1 पर ब्लैंक रीड कर रहा है, तो ब्लैंक रीड करने पे क्या करना है? ब्लैंक का ब्लैंक रखना है, डायरेक्शन लेफ्ट कर दो, स्टेट इज Q2। सो नाउ योर हेड विल रीड, हेड इज इन द स्टेट ऑफ Q2 और हेड विल रीड दिस A। क्लियर? अब Q2 पे A रीड करेगा तो आपका ट्रांजिशन डिफाइंड है। क्या करना है आपको? ब्लैंक करना है, डायरेक्शन लेफ्ट, ब्लैंक करना है, डायरेक्शन इज लेफ्ट और स्टेट इज Q3। सो नाउ यू आर रीडिंग Q3 हियर, you are in state Q3 and you are reading blank sign here। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछिए, ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? वेरी गुड, थैंक यू। अब थैंक यू जैन। अब Q3 से क्या मिलेगा? बी। तो देखो बी मिले, ए मिले, हमें कोई मतलब नहीं है कब तक? जब तक कि हमें ये ब्लैंक नहीं मिले, है ना? तो हम यहाँ पर लूप लगा दें। तो ए मिला तो ए का ए रखा, डायरेक्शन लेफ्ट, बी मिला, बी का बी रखा, डायरेक्शन लेफ्ट। तो ए मिला, बी मिला, हम यही घूमते रहे। Q3 पे क्या मिला? जैसे ही ब्लैंक मिला तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लैंक का मैं ब्लैंक रखूं और डायरेक्शन क्या कर दूं? राइट। और स्टेट में किस में चला जाऊंगा? Q0। तो अब मैं आ गया यहाँ पर Q0 स्टेट। बात समझ में आ गई मेगा? अब समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड, गुड। अब देखो, अब वापस क्या हुआ? Q0 पे पहुंच गए, क्योंकि अगर हम Q0 नहीं जाएंगे, आपको लग रहा हो हम Q0 क्यों जा रहे हैं, अगर नहीं जाएंगे तो जितनी लंबी स्टेट स्ट्रिंग होगी हमारी, उतनी हमें स्टेट बनानी पड़ेगी। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो सही नहीं है ना? क्योंकि लेंथ अगर मान लीजिए हमारी 500 स्ट्रिंग की है, स्ट्रिंग हमारी 500 लेंथ की है, तो इसका मतलब 500 स्टेट्स आएंगे बीच में, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम मिनिमम स्टेट्स को यूज करेंगे और उसमें कोई भी स्ट्रिंग अगर आप देते हो वो उसमें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। जस्ट सी हियर। अब दोबारा से देखो, Q0 से B मिला, तो देखो ये वाला ट्रांजिशन, बी को क्या कर दिया आपने? ब्लैंक कर दिया और स्टेट आ गए Q1 पे क्या मिलेगा? अब ए मिला तो ए का ए रखना है, आगे चलना है, आगे जाने के बाद फिर ए मिला, ए का ए रखना है, आगे चलना है। फिर आपको क्या मिला यहाँ पर? ब्लैंक। देखिए ये वाला ब्लैंक मिला आपको, ठीक है? तो इस ब्लैंक का आपने क्या किया? ब्लैंक का ब्लैंक रखा, डायरेक्शन लेफ्ट, और आप किस स्टेट में आ गए? Q2। अब Q2 के जब वापस यहाँ से लौटेंगे तो आपको ये वाला बी मिला, तो इस बी को आपने क्या कर दिया? ब्लैंक कर दिया। और डायरेक्शन क्या हो गई? लेफ्ट, और स्टेट क्या हो गई? Q3, ठीक है?
अब जैसे ही यहाँ से वापस लौटोगे आपको ए मिला, और ये तो ए का ए रखना है डायरेक्शन लेफ्ट, फिर ये वाला ए मिला, ए का ए रखना है डायरेक्शन लेफ्ट, फिर क्या मिला, ये वाला ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक मिलेगा। तो ब्लैंक मिला तो आपने क्या किया, ब्लैंक का ब्लैंक रखा, डायरेक्शन इज राइट। जैसे राइट में डायरेक्शन लिया, स्टेट क्या आ गई आपकी Q0। अब क्या मिला यहाँ पर ए, Q0 से ए, फिर यही वाला दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैंक में। फिर आगे चलो, आगे क्या मिला, ए, ऐसे ही घूमता रहेगा, फिर ये तुरंत ब्लैंक मिल गया। तो इस ब्लैंक को ब्लैंक राइट करेगा, डायरेक्शन इज लेफ्ट, वापस से लेफ्ट आ गया। लेफ्ट आने पे क्या मिला, ए मिला, दिस इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक एंड डायरेक्शन इज लेफ्ट। और स्टेट क्या हो गई, Q3। Q3 स्टेट पर जैसे ही ब्लैंक मिला तो आप क्या करोगे, राइट डायरेक्शन में जाओगे। यहाँ से देखो राइट डायरेक्शन में जाओगे, स्टेट क्या हो जाएगी, Q0। Q0 से क्या मिल रहा है, ब्लैंक। तो Q0 से जैसे ही ब्लैंक मिला, इसका मतलब आप कहाँ गए, फाइनल स्टेट। So this is the simple logic, simple execution for the Turing machine for WWR. Any one of you have any problem now? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें? जैन तब क्लियर समझ में आ गया बेटा? मेघा, रोशनी, नंदिनी, मानसी, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर समझ आ गया? आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो डू the computation also, means we can also perform addition, multiplication like operation. That means suppose A is given to you and B is given to you, we can perform the addition between these two, A and B. And we can also perform the A minus B. If n is given to you, then we can find n minus 1 also, or we can find n plus 1 also. So these type of functions are called computable functions. We can perform, we can construct a Turing machine for computable function also. So in the next lecture, we will discuss the computable function or the Turing machine for computable function. Okay? तो आज तक का यहाँ कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, किसी को भी अगर कोई डाउट आता है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, किसी में भी कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये इक्वल नंबर ऑफ ए और बी मैंने आपको करा दिया, ए एन बी एम करा दिया, ए एन बी एन करा दिया, और इरेजिंग ऑफ द लास्ट सिंबल, ये बहुत सारे हम लोगों ने कर दिए क्वेश्चंस। और रिकॉग्नाइजिंग ट्यूरिंग मशीन वेयर डब्ल्यू एंड विद ए, डब्ल्यू एंड विद बी, है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बाद कि W#W हो बीच में तो कैसे बनाएंगे हम ट्यूरिंग मशीन, या ट्यूरिंग मशीन टू कंप्यूट एनी फंक्शन फॉर fn equals to n plus 1, fn equals to n minus 1, f a plus b, a comma b is equals to a plus b, likewise. Okay, so we will discuss tomorrow. Thank you.